الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین سامعات، آج جس موضوع کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں وہ ہے تجارت سے متعلق اسلام کے اصول۔ جو تجارتی معاملات ہیں اس سے متعلق اسلام کے کچھ موٹے موٹے اصول۔ بہرحال میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تجارت سے متعلق یہ سمجھ لیں کہ اسلام نے تجارت کی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے، اور تجارت کے ذریعے آدمی خود کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اپنے پریوار کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اپنی قوم کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور اسلامی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام نے بھی تجارت کی ہے، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی کیا ہے۔ بلکہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تاجروں کے بارے میں یہ غلط فہمی پال لیتے ہیں کہ یہ دنیا دار ہے، یعنی ان کو دنیا پرست خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں اگر ایک آدمی کے پاس علم کے ساتھ مال دونوں جمع ہو جائے، علم مال دینداری، تو اس کا مقابلہ یعنی اجر میں، ثواب میں اس کا مقابلہ امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی آدمی اسے پچھاڑ نہیں سکتا کمپٹیشن میں۔ کون سے کمپٹیشن میں؟ اجر کی کمپٹیشن میں، ثواب کے کمپٹیشن میں۔ آپ خود دیکھ لیں کہ صحابہ میں جو ٹاپ 10 صحابہ ہیں جن کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، جو 10 صحابہ، اس میں اکثریت مالداروں کی ہے۔ وہ 10 صحابہ جن کو اسی دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کسی دنیا میں کہہ دیا جائے کہ مرنے کے بعد کنفرم ہے آپ کا جنت میں جانا، اس میں اکثریت مالدار صحابہ کی ہے۔ صحابہ کے سب سے بڑے مالدار صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہی 10 میں سے ہیں۔ صحابہ میں ایک اور مالدار صحابی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہی 10 میں آتے ہیں۔ صحابہ میں اور مالدار صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انہی مالدار صحابہ میں آتے ہیں۔ صحابہ میں ایک اور ایسے صحابی جو اس دنیا سے گئے تو ان کا ترکہ سب سے زیادہ تھا، زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی انہی میں سے آتے ہیں۔ شروع میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن بعد میں بہت کچھ ہو گیا ان کے پاس۔ اور بھی کئی صحابہ کرام، غرض یہ کہ اکثریت مالدار صحابہ کرام کی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ مالدار ہونا یا تجارت کرنا یا مالی اعتبار سے مضبوط ہونا یہ دینداری کے منافی ہے، یہ غلط بات ہے۔ اور بہت سارے لوگ، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی ایک زبردست کتاب ہے تلبیس ابلیس، بہت پیاری کتاب ہے، پڑھنی چاہیے سب کو۔ اس میں جو بہت سارے لوگ مکاریاں کرتے ہیں، شیطانی چالیں چلتے ہیں،
ऊपर से कुछ अंदर से कुछ होते हैं। तो उनको बेनकाब किया है इमाम इब्नुल जौजी रहमहुल्लाह ने, ठीक है। तो उसमें उन्होंने उन लोगों पर बड़ा जबरदस्त नक्द किया है जो पैसा कमाने से मालदार बनने पर नफरत दिलाते हैं, उनको दुनियादार बनाते हैं। उनका पोल खोला है और कहा सबसे ज्यादा माल के पीछे दौड़ने वाले यही लोग होते हैं जो कहते हैं पैसा मत कमाओ। ये भिखमंगे होते हैं, ये कटोरा लेके कहीं भी बैठ जाएंगे, मालदारों को बेवकूफ बना के अच्छा खासा ऐठेंगे और मुंह से क्या बोलेंगे कि हमको माल नहीं चाहिए। सबसे बड़े लुटेरे यही होते हैं, यानी इनके पास सोर्सेज बहुत होते हैं पैसा कमाने, किसी मुंह से बोलते हैं हमें दुनिया नहीं चाहिए, लेकिन दौलत में सोते हैं, दौलत में सांस लेते हैं, दौलत में पड़े रहते हैं। ये बेवकूफ बना के इधर उधर ऐठते हैं। बहुत सारे लोग यानी बराह रास्त डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे हमको पैसा चाहिए, लेकिन सिस्टम ऐसा बना के रखा है इबादत के नाम पर या जो है रस्म के नाम पर, सिस्टम ऐसा बना के रखा है कि वो सिस्टम इन्हें बहुत सारा पैसा देता है। उससे बेहतर है कि सफाफी जो है साफ सुथरे तरीके से आप हलाल तरीके से कमाओ, किसी को बेवकूफ बना के, किसी को जो है मिसगाइड करके और दीन के नाम पे बिदात और खराफात इजाद करके, अलग अलग रस्में इजाद करके पैसे ऐंठते हो और लोगों से कहते हो कि पैसा नहीं कमाना चाहिए। सहाबे कराम एक से एक मालदार हुए और साफ तरीके से उन्होंने तिजारत की। बल्कि एक सहाबी का मैं नाम लूंगा कि जो हजरात भी ताजिर हैं उन्हें इनकी सीरत जरूर पढ़नी चाहिए, इनके बारे में पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी रहनुमाई आपको मिलेगी। वो सहाबी हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा में सबसे मालदार सहाबी, बहुत बड़ी दौलत इनको मिली थी। इनकी जिंदगी की कुछ चीजें देखें, यानी अगर कामयाब ताजिर बनना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उसवा है अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु। उस जैसा जिगर चाहिए, उस जैसी हिम्मत चाहिए और उस जैसी उसवा चाहिए, अल्लाह ताला बहुत नवाजेगा। आप जानते हैं कि अच्छा ये अशरे मुबशरा में आते हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु जब हिजरत करके मदीना आए तो मक्का में ये मालदार आदमी थे, ये गरीब आदमी थे, लेकिन अल्लाह के खातिर सब कुछ छोड़कर चले आए मदीना। मक्का में इनके पास बहुत दौलत थी, बड़े मालदार थे, लेकिन सब कुछ जीरो में अपने आप को कर लिया और मदीना चले आए। किस लिए? सिर्फ इस्लाम की खातिर, सिर्फ अल्लाह की खातिर। ये जिगर होना चाहिए एक मालदार आदमी का। मालदार बनना बुरा नहीं है, लेकिन जब बात आ जाए एक तरफ मालदारी एक तरफ दीन, तो आप दीन को चूज करें, मालदारी को किनारे कर दें। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब कुछ छोड़ दिया और चले आए मदीना। मदीना आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जो मक्का से आते थे उनको मदीना में रहने वाले, जिनको हम अंसार कहते हैं, अंसार साहबा का भाई बना देते थे। एक मक्की साहबी को लेते थे और एक मदनी साहबी को, दोनों को मिला के भाई बनाते थे, ताकि जो मदनी साहबी हैं, अंसारी साहबी हैं, वो मुहाजिर साहबी की देखभाल करें। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु को जानते हैं किसके साथ किया था? मदीना में मदीना के एक सहाबी थे, एक अंसारी साहबी, जिनका नाम था साद इब्न रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये मदीना के सबसे मालदार साहबी थे, मदीना के सबसे मालदार, उनसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं था। और मक्का के सबसे मालदार साहबी अब्दुर्रहमान बिन औफ सब कुछ छोड़ के आ गए थे मदीना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को, यानी मक्का के सबसे मालदार आदमी को, मदीना के सबसे मालदार आदमी का भाई बना दिया, क्या कि आप इनके साथ रहोगे। साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको अपनाया, भाई बनाया। और सही बुखारी की रवायत है कि भाई होने का हक कैसे अदा किया। कहा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ इन्नी अक्सरुल अंसारी मालन, ये सही बुखारी के अल्फाज है। कहा कि ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, मैं अंसार में सबसे ज्यादा माल वाला हूं, सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास है, सबसे ज्यादा दौलत मेरे पास है। और
وَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، اور آج سے میں آدھی دولت آپ کو دیتا ہوں. یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے، لیکن مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انتظام کیا کہ مدینہ کا سب سے مالدار آدمی آدھی دولت دے رہا ہے. آدھی دولت دے رہا ہے. صرف اتنا نہیں، اور کہا کہ میری جو بیویاں ہیں، میں جس کو آپ پسند کر لیں میں طلاق دے دیتا ہوں اور آپ شادی کر لیں. شادی کہیں بھی ہو سکتی تھی، لیکن کہا کہ جب اللہ کے نبی نے مجھے ذمہ داری دی ہے ان کو اپنے ساتھ رکھنے کی، تو میرے ساتھ جو کچھ ہے، تجارت ہے، گھر بار ہے، بیوی ہے، سب میں آدھا دے ان کا. یہ آفر کیا کہ آدھی دولت اور جو بیوی پسند ہو وہ لے لو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ بارک اللہ فی مالک و اہلک، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، اللہ آپ کے اولاد میں برکت دے. کہا کہ حل من سوق فیہ تجارت، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دو جہاں تجارت کی جا سکے. یہ تاجر کا یہ دل ہوتا ہے. ہاں، ایسا نہیں کہ ہر جگہ آپ ہاتھ پھیلا رہے ہو، چاہیے چاہیے چاہیے، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. آدھی دولت بیٹھے بٹھائے آ رہی تھی، ہم میں سے شاید کوئی ہوتا تو ایکسپٹ کر لیتا، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تاجر آدمی تھے، تجارت کرنا جانتے تھے، ان کے اندر وہ ہنر تھا. اس لیے ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے تجارت کا ہنر دیا ہے، میں بیٹھے بٹھائے ان کا آفر کیوں لوں. اس کو مسترد کر دیا، شکریہ کے ساتھ اسے رد کر دیا، ان کے لیے دعا دی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنی بیوی اپنے پاس رکھے، اپنا مال اپنا پاس رکھے، مجھے صرف راستہ بتا دیں کدھر ہے مارکیٹ، کہاں سے تجارت ہو سکتی ہے. اس کے بعد وہاں سے انہوں نے تجارت شروع کی، اور کچھ ہی دن میں بیوی بھی ان کے پاس آ گئی، شادی بھی ہو گئی، پیسہ بھی آ گیا. اور وہ حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سے کہا تھا جب شادی کے آثار دیکھے تو کہا کہ تم نے شادی کر لی؟ کہا ہاں. کہا اولی مولو بشاتی، ولیمہ بھی کر لو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. تو یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا. مسلم احمد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنی برکت دی کہ میں اگر زمین سے پتھر بھی اٹھا دوں تو نیچے سونا چاندی نکلے گا. اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے نوازی. آپ دیکھیے خودداری، آپ سیکھیں صحابہ کرام سے. جذبہ یہ ہونا چاہیے کچھ کر گزرنے کا، فری میں لینے کا نہیں. محنت کریں، ہمارے ہنر سے، ہماری محنت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. انہوں نے لیا نہیں ساتھ نبی کا نا، بلکہ کمایا اپنی محنت سے اور لٹایا، بے حساب لٹایا. یہ بھی ایک راز ہوتا ہے تجارت میں. کامیابی کا ایک راز ہے انفاق. جتنا آپ خرچ کرو گے لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی نوازے گا. طبرانی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان للہ اقواما اختصهم بالنعم، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ مال دینے کے لیے چن لیتا ہے. مال دینے کے لیے چن لیتا ہے لمنع فی العباد، تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو یقرهم فیہا، انہیں تب تک مالدار بنائے رکھتا ہے ما یبذلونہا، جب تک یہ خرچ کرتے رہتے ہیں. فَإِذَا مَنَعُوهَا، لیکن جیسے یہ خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں، نَزَعَهَا مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی دولت چھین لیتا ہے. فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، انہیں کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے. یعنی اس مالدار کو ریپلیس کر دیتا ہے، اس کی دولت نہیں برباد کرتا، اس کی دولت کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے. اس کی جگہ کوئی اور مالدار ہو جاتا ہے. جیسے آپ کی آفس ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اگر وہ کام نہیں کرے گا تو آپ اس کو ریپلیس کر دیں گے، پوسٹ برقرار رہے گی، اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. تو ایسے اللہ تعالیٰ دولت کسی کو دیتا ہے، وہ نہیں کام کرتا، وہ دولت اٹھا کے کسی اور کو دیتا ہے. ایسے کہتا نا کہ ایک آدمی بہت بڑا تھا، اچانک روڈ پہ آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی روڈ پہ تھا، اچانک بڑا آدمی بن گیا. تو اللہ کا یہ نظام جب اپلائی ہوتا ہے تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سیکھیں وہ کس قدر خرچ کرنے والے تھے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپیل کی ہو، مالی اپیل کی ہو، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہے ہو، انہوں نے نہ دیا. بے شمار دینار درہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کا پورا خرچہ سنبھالا. ایک بہت بڑی قیمت کا باغ بیچ کے ازواج مطہرات کو دے دیا.
जो सहाबे कराम में फकरा थे, मुहाजिरीन सहाबे कराम जो फकीर थे, इनके साथी जो मक्का से आए थे, जिनके पास कुछ नहीं था, उनकी मदद करने के लिए उन्होंने बेशुमार दौलत लुटा दी। हत्ता कि जाते जाते अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो वसीयत बनाई 1/3 की, वो भी बहुत बड़ी मिकदार में थी। कहा जितने बदरी सहाबी हैं जिंदा रहेंगे मेरे मरने के बाद, उनमें से हर एक को 400 दीनार देना। दीनार, एक दीनार सोने के सिक्के को बोलते हैं, सोने का सिक्का, सोने का सिक्का एक, कितना देना? 400। आप अंदाजा करें कि एक बदरी साहबी को कितना मिलेगा। और जब दिया गया तो जानते कितनी बदरी साहबी थे? उस वक्त 100 बदरी साहबा थे। 100 बदरी साहबा उनकी वफात के वक्त जिंदा थे और सबको 400 दीनार मिला। इसके अलावा एक और बाग था, कहा इसको बेच के, मेरे मरने के बाद इसको बेच के इसकी कीमत अज़वाजे मुतहरात को, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां जिंदा है उनको दे देना। कुछ और जो फकरा मुहाजिरीन थे उनके हवाले किए कि उनको दे देना। इन्होंने पूरी उम्मत को, पूरी कौम को लेके चलते थे अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु। और ये उनके इन्फाक की ये बरकत थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें मालदार बनाए रहा। और मालदार होने के बावजूद भी आप देखें, दो और चीजें, फिर मैं असल टॉपिक पे आता हूं। एक अहम चीज ये मेरे भाइयों कि इतने मालदार होने के बावजूद भी इबादत में सबसे आगे रहते थे। आज अगर किसी के पास माल आ गया तो कहता मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं, नमाज में उसकी तरफ से कोताही होने लगती है। लेकिन सहाबा के सबसे मालदार सहाबी, सहाबा में सबसे मालदार सहाबी अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज में पहली सफ में होते थे, पहली सफ में। सही मुस्लिम की रवायत है कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचने में ताखीर हो गई, मुसल्ले पे नहीं आ सके, कहीं गए थे और वापस आने में ताखीर हो गई। लेकिन सहाबे कराम की तरबियत ऐसी हुई थी कि गरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आए, लेकिन अगर टाइम हो गया तो जमात खड़ी हो जाती थी। तो उस वक्त अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु को आगे बढ़ा दिया गया, सबसे आगे वही थे, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया गया। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक रकत पढ़ाई, उसके बाद पूरी नमाज पढ़ाई, और जब सलाम फेरा तो क्या देख रहे हैं कि पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर अपनी छूटी हुई रकतें मुकम्मल कर रहे हैं। ये सहाबा में सबसे मालदार सहाबी हमारे नबी की इमामत कर रहा है। ये शर्फ सिर्फ दो लोगों को हासिल हुआ, एक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को, कि उनके पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वो इमामत के लिए खड़े हो गए थे, वो तो पीछे आ गए थे और इशारा मिला था उनको। और अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये शर्फ मिला है कि आपने इमामत कराई और पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इख्तिदा में उनका मुक्तदी बन के नमाज पढ़ा है। ये शर्फ सहाबा में एक मालदार सहाबी को हासिल है कि एक मालदार सहाबी ने नबी की इमामत कराई। वो नबी जिसने मेराज में सारे अंबिया की इमामत कराई है, जो नबी मेराज में सारे अंबिया के इमाम था, उस नबी की इमामत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कराई, जो सहाबा में सबसे मालदार सहाबी थे। इससे आप अंदाजा करें कि पैसा भी इबादत में सबसे आगे है। और सिर्फ अहदे रसालत ही में नहीं, सहाबा के दौर में भी नमाज में सबसे आगे होते थे। याद कीजिए उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाकया। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हुए तो उस वक्त मामला क्या था? एक आदमी छुपा हुआ था पीछे खंजर लेके, फजर की नमाज का वक्त था और मुसल्ले पे थे। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु चुपके से उसने खंजर मार दिया। उसके बाद रिवायत में क्या है, फ़अख़ज़ यद अब्दुर्रहमान बिन औफ, उमर रजी अल्लाह तआला ने अपने पीछे हाथ बढ़ाया कि किसी को पकड़ के आगे मुसल्ले पर कर दें, क्योंकि वो जख्मी हो गए। तो जब पीछे हाथ बढ़ाया तो हाथ में किसका हाथ आया? अब्दुर्रहमान बिन औफ। अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़ा, मुसल्ले पे आगे बढ़ा दिया। और उस दिन भी इमामत किसने संभाली? अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला। जल्दी से छोटी छोटी सूरतें पढ़ी और फजर की नमाज खत्म किया। आप अंदाजा करें, ये तो वाकई शहादत है, लेकिन वाकई शहादत में इस नुक्ते पर गौर करें कि अगर खलीफे वक्त अपने पीछे हाथ बढ़ा के किसी को अपनी जगह इमामत पे खड़ा करना चाहता है तो किसका हाथ में आता है? अब्दुर्रहमान बिन औफ का। आप अंदाजा करें कि जस्ट इमाम के पीछे खड़े होते थे। सहाबा का सबसे मालदार आदमी इमाम के पीछे खड़ा है। नबी के दौर में भी यही हाल था,
सहाबे कराम के दौर में भी यही हाल था, और किसी तरह का कोई घमंड नहीं। अल्लाह ताला किसी को पैसा देता है तो आदमी कभी कभी घमंड में इतराने लगता है और नतीजे में अपना नुकसान कर देता है। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला के अंदर जरा भी घमंड नहीं, जरा भी गुरूर नहीं, बिल्कुल सीधे साधे सिंपल सादा से जिंदगी गुजारने वाले। इनको उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऑफर किया कि मेरे बाद खिलाफत आपको संभालनी है। पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्होंने नाम लिख दिया कि मेरे बाद कौन खलीफा होंगे, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कमेटी बना दी कि ये लोग चुन लेंगे कि मेरे बाद कौन खलीफा बनेगा। फिर चुना गया किसको, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने कहा कि जैसे पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी को नामजद किया था कि मेरे बाद उमर खलीफा बनेंगे, तो मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ को नामजद करता हूं कि मेरे बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनेंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। आप सोचिए, सबसे मालदार आदमी है और कहता है कि मुझे खिलाफत का ओहदा नहीं चाहिए, जबकि वो सबसे बड़ी पोस्ट है, उससे बड़ा कोई ओहदा है ही नहीं। खिलाफत से बड़ा ओहदा कोई नहीं, किसी एक स्टेट किसी एक मुल्क का ओहदा नहीं है, पूरे आलम इस्लाम का वो अमीर होता है। तो खलीफा होता है वो पूरी दुनिया की मुसलमानों का अमीर होता है। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे ये ओहदा नहीं चाहिए। लेकिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ने कहा कि तुम मानो या ना मानो तुम्हें ही बनना है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं अल्लाह ताला उससे पहले मुझे दुनिया से उठा ले, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे बस की बात नहीं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें उस्मान रज़ी की मौत से पहले उठा लिया। उस्मान रज़ी की वफात से पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ इस दुनिया से जा चुके थे। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी इतनी दौलत होने के बावजूद भी जरा सा भी घमंड नहीं है, ना किसी ओहदे की लालच है। ये राज है। लोग पूछते ना कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी के मालदार होने का राज क्या है, ये राज है। भाई तिजारत के उसूल ज़ाबित अपनी जगह पे, लेकिन आप एक मुसलमान ताजिर, एक सहाबी ताजिर की जिंदगी भी कभी पढ़े, वहां से सीखने की तिजारत कैसे की जाती है, कामयाब ताजिर कैसे बना जाता है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके अंदर जरा सा भी ओहदे की लालच नहीं, बल्कि अच्छा इन सब के बावजूद आप देखें, यानी सबसे मालदार आदमी है, सबसे ज्यादा इबादत गुजार आदमी है, ओहदे की कोई लालच नहीं है और इल्म की भी कोई कमी नहीं है। आज मालदार आदमी, उसको पता ही नहीं रहता नमाज रोजे के मसाइल, उसको टाइम ही नहीं है किसी की तकरीर सुनने का, कोई किताब पढ़ने का, वो बिजी रहता है तिजारत में। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये तिजारत के साथ साथ, मालदार होने के साथ साथ एक आलिम और अहादीस के रावी थे। सही बुखारी का वाकया है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सफर पर निकले, पता चला कि आगे वो वबा फैली हुई, जैसे हमारे यहाँ कोरोना आया हुआ था। तो मशवरा किया कि क्या किया जाए, क्या आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो फिर सबने ये मशवरा किया कि नहीं जाना चाहिए, हम वहां नहीं जाएंगे। वहां गए तो भाई बीमारी और लोगों को लग सकती है। तो सारे सहाबे किराम ने यह फैसला किया कि हम आगे नहीं जाएंगे। उस मजलिस में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं थे। वो बाद में आए और सुना कि यह फैसला हुआ है, तो उमर फारूक के पास गए और कहा उमर, आपने जो फैसला किया है इस हवाले से मेरे पास तो हदीस रसूल है। क्या हदीस रसूल है? कहा हदीस ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम किसी सरजमीन के बारे में सुनो कि वहां जो है वबा फैली हुई है, फला तख्तिम हो, तो वहां मत जाओ, और जहां पे तुम हो वबा फैल गई तो वहां से निकलो मत। मैं जैसे कोरोना में लॉकडाउन लगा था तो वही तालीम दी कि जहां हो वहां से निकलना नहीं और जहां नहीं वहां जाना नहीं, और वही फैसला हुआ था। अब जब उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने ये सुना कि मैंने जो फैसला किया उसके मुताबिक तो हदीस मौजूद है, तो बहुत खुशी हो। लेकिन आप अंदाजा करें, इस पूरी मजलिस में ये हदीस किसी को नहीं मालूम थी सिवाय अब्दुर्रहमान बिन औफ के। आप सोचिए कि कितना इल्म से भी कितना गहरा रिश्ता है। इतने बड़े बड़े अकाबिर सहाबा, अकाबिर सहाबा, उन्हें ये हदीस नहीं मालूम है, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये हदीस मालूम है। तो आप सोचें कि मालदार सहाबी, एक ताजी सहाबी, उसका इबादत से भी गहरा रिश्ता, इल्म से भी गहरा रिश्ता, हत्ता की जिहाद से भी गहरा रिश्ता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ऐसी लड़ाई नहीं जहां वो शरीक न हुई हो, हर लड़ाई में उन्होंने शिरकत की है। और इसके साथ साथ मैं एक आखिरी चीज इनके बारे में जिक्र कर दूं, इसके साथ साथ अपनी फैमिली
अपने बाल बच्चों के साथ भी इंतहाई नरम। आजकल क्या होता है, जिसको अल्लाह ताला ने ताकत दी है, पैसा दिया है, थोड़ा सा झगड़ा हुआ अपनी बीवी को तलाक तलाक तलाक, यानी किसी को कोई अहमियत नहीं देता, बच्चों को पीटता है, बीवी को बिल्कुल जो है बेहैसियत बना के रखता है, बात बात में तलाक। आदमी को गुस्से का कंट्रोल नहीं, गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं, फौरन तलाक दे देता है। लेकिन कुव्वते बर्दाश्त देखें, तलकात इब्न साद की रवायत है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी थी तमाजुर, तमाजुर रजी अल्लाह अन्हा। अब ये भी बहुत खुशकिस्मत थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजेस्ट किया था इनसे शादी को, इनसे शादी हो गई। भाई किसी जन्नती सहाबी से शादी होना कोई छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब ये बीमार थे, बीमार होने के बाद इनकी बीवी ने कुछ कह दिया, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो तुम कहो, मैं तुमको तलाक दे देता हूं। ये नहीं कि गुस्से में कह दिया तलाक तलाक, नहीं, कहा अगर तुम्हें नहीं रहना है तो सोच लो, अलग हो जाओ मुझसे। तो उनकी बीवी ने कहा ठीक है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि ये बताओ तुम पाक हो या नापाक हो, यानी हैज से हो, क्योंकि हैज की हालत में तलाक नहीं दे सकते। उन्होंने कहा मैं तो हैज की हालत में हूं। कहा ठीक है, जब पाक हो जाना तब बताना। अब बताइए, आज हमारे पूरे माशरे में कोई एक आदमी को पाएंगे जो तलाक देने से पहले इंक्वायरी किया हो कि तुम किस कंडीशन में हो? वो दिमाग खराब होता, गुस्सा आता, तलाक तलाक फौरन बोल देते हैं। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी तरह से, निहायत नरमी से और पूरी संजीदगी से बात किया, यानी कोई झगड़ा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, और उनकी मर्जी पर यह भी नहीं कि मैं तुमको नहीं रखना चाहता, उनको डाल दिया कि अगर तुम्हें रहना हो, अगर तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ है तो अलग हो जाओ। इतनी नरमी से अपनी बीवी से बात करे, वो भी किसके हाथ में जन्नत की सर्टिफिकेट है, और सहाबा में जन्नती सहाबी, और सहाबा में यानी उस मुआशरे में, उस समाज के सबसे मालदार सहाबी, और अपनी बीवी से कह रहा है कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हें रहना हो रहो, मैं तुमको हटा नहीं रहा हूं, तलाक नहीं दूंगा, लेकिन अगर नहीं जमता है तो चली जाओ। बहरहाल उन्होंने तलाक ले लिया, और बाद में उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, बाद में एक जन्नती साहबी ने तलाक दिया तो दूसरे जन्नती साहबी से उनकी शादी होगी, जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। बहरहाल एक अलग टॉपिक है, मैं कहना ही चाहता हूं कि इनके अंदर कितनी नरमी थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो अगर किसी को तिजारत करनी है, तिजारत के बारे में जानना है, तो टेक्निकल चीजें जानने के साथ साथ जो ताजिर सहाबा हैं उनकी सीरत पढ़ें, उनके वाकयात पढ़ें, उनके वाकयात में हमारे लिए बहुत सारी रहनुमाई मिलेगी। अब आइए कुछ बुनियादी उसूल में आपके सामने रख दूं। देखिए, तिजारत से मुतालिक अगर हम शर्तों की बात करें, उसूलों की बात करें, तो उसको दो किस्मों में बांट सकते हैं। एक ऐसे उसूल ज़ाबित जो आम है, जनरल है, यानी किसी भी किस्म की तिजारत हो वहां वो अप्लाई होंगे, और कुछ उसूल ज़ाबित ऐसे हैं जो किसी खास केस में अप्लाई होंगे, यानी किस टाइप की आप तिजारत कर रहे हैं उससे जुड़े हुए खुसूसी हैं। तो ये दूसरी टाइप की जो शर्तें हैं, जो वजाहतें हैं, इस पे हम बात कर ही नहीं सकते क्योंकि इसके लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। अलबत्ता जो जनरल उसूल हैं जिन्हें हर जगह अप्लाई करना होता है, जिनका ध्यान हर आदमी को रखना होता है, वो मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूं। सबसे पहली चीज ये है मेरे भाइयों कि तिजारत के मामला वही अंजाम देगा जो तिजारत की अहलियत रखता हो, जिसके अंदर तिजारत की अहलियत हो। दूसरे अल्फाज में कहने तिजारत के लिए एलिजिबल हो, वो डील करने के लिए एलिजिबल हो। अब जैसे कोई बच्चा है माइनर, तो माइनर है तो वो तिजारत की डील नहीं कर सकता, उसको ये इजाजत नहीं, हालांकि उसके पास वो पैसों का मालिक हो सकता है। जैसे बड़ा बाप है, इंतकाल कर गया, प्रॉपर्टी मुंतकिल हो गई, छोटा बच्चा है 1 साल का, मालिक है करोड़ों का, लेकिन उस उम्र में वो तिजारत नहीं कर सकता, वो माइनर है, एलिजिबल नहीं है उसके लिए। तो अगर कोई बच्चा है, बच्चे के लिए देखिए अल्लाह ताला ने कलम भी उठा के रखा है, रुफियल कलम अन सलासिन अन सबी हत्ता यहतलिमा, कि अल्लाह ताला ने 3 लोगों से कलम उठा लिया, यानी 3 लोगों की फाइल नहीं बनती, गुनाहों की फाइल नहीं बनती। उनमें से एक बच्चा है, यहां तक कि जवान ना हो जाए। तो बच्चा जब जवान हो जाता है तब उसके गुनाहों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है, वरना वो दर्ज ही नहीं किया जाता। अभी बच्चा है, अल्लाह ताला उसको माफ करके रखा है, वो गलती करे तो भी उसके लिए कोई सजा नहीं, बच्चा है, उसे नहीं पता, अल्लाह ताला ने माफ करके रखा है। तो ऐसे तिजारत के मामला बहुत बड़े मामला होते हैं। अभी बच्चा है, नासमझ है, तो मालिक तो है वो पैसों का, उसको विरासत में मिल सकता है, हदिया मिल सकता है, गिफ्ट मिल सकता है,
कई तरह की प्रॉपर्टी उसको मिल सकती है, लेकिन वो तजारती मामला नहीं तय कर सकता जब तक कि होशियार ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, समझदार ना हो जाए, तब तक नहीं। इसलिए ऐसी कोई तजारत जहां एक फरीक बच्चा हो, एक तरफ बच्चा, उसके साथ कोई डील नहीं कर सकता। कोई उसको जाके बेवकूफ बना ले, कोई उसको चॉकलेट देके कुछ भी कहलवा ले, तो इस तरह से अच्छा खासा चीट फ्रॉड हो जाएगा। समझदार आदमी धोखा खा ही जाता है, वो तो बच्चा है। अच्छे अच्छे मास्टर माइंड लोग फेल हो जाते हैं, सर पकड़ के बैठते हैं, उनके साथ क्या हुआ, तो बच्चा है। तो उसके लिए इजाजत नहीं है, उसकी वो अगर एक तरफ रहेगा तो तजारत जायज नहीं, उसके साथ आप कोई डील नहीं कर सकते जब बच्चा है, जहां तक कि बड़ा ना हो जाए। दूसरी चीज ये कि तरफैन तजारती मामले से राजी हो, दोनों की रजामंदी जरूरी है। अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल बैउ अन तराजी, कि जो बै होगी वो दोनों तरफ की रजामंदी से हो सकती है। अब रजामंदी का मतलब ये है कि किसी तरफ से कोई दबाव ना हो, जबरदस्ती किसी का कोई माल नहीं खरीदा जा सकता है, डेरा धमका के, ब्लैकमेल करके। अब देखिए कितने सारे लोग किसी की प्रॉपर्टी है, गन पॉइंट पे लिखा लिया, धमकी दे के कब्जा कर लिया, जबरदस्ती कहा कि तुम इसको बेचो। तो जबरन किसी की जायदाद नहीं खरीदी जा सकती। जबरन किसी की जायदाद हो, किसी का माल हो, कोई भी चीज हो, अगर जबरदस्ती किसी ने खरीदा, उस पर दबाव डाल के, फोर्स करके, मजबूर करके, वो बेचारा डर के मारे दे दिया, तो आप ये ना समझे कि आप उसके मालिक हो गए, तो उसका कोई एतबार नहीं होगा। और किसी भी अंदाज में किसी पर दबाव डाला तो वो तजारत नहीं मानी जाएगी। तो दोनों तरफ से रजामंदी हो, बेचने वाला भी राजी हो और खरीदने वाला भी राजी हो। और राजी होने का क्या मतलब है कि वो अपनी बितीब नफ्सी ही, जैसे इमाम बहकी रहमतुल्लाह ने एक रिवायत निकल की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यहिल्लु लिम्रिइन मिम्मा अखीही इल्ला बितीब नफ्सिही, कि जब तक वो अपने दिल से रजामंदी ना दे, अगर जबान से कह भी दे तो वो आपका नहीं हो जाएगा। जबान से कहने से भी आपका नहीं होगा जब तक कि वो दिल से राजी ना हो। यानी अंदरूनी तौर पर या बाहरी तौर पर कोई दबाव ना हो, इसको कहते हैं रजामंदी। रजामंदी की डेफिनेशन क्या है कि दाखिली या बाहरी कोई दबाव ना हो। बाहरी दबाव यानी आपने मुंह से कह दिया कि नहीं बेचेगा तो मारूंगा, ये कर दूंगा और कर दूंगा। और कभी कभी खामोशी के साथ ब्लैकमेल किया जाता है, यानी जबान से आदमी कुछ नहीं कहता, लेकिन माहौल ऐसा बना हुआ है, अंडरस्टूड है, आदमी समझता है कि अगर हमने, ये आदमी ऐसा है, इसका रवैया ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है कि इसने अगर मांग लिया, इसको नहीं दिया तो हमारा बुरा हाल होगा, इसलिए वो रजामंदी दे देता है। तो ऐसी तजारत भी नहीं मानी जाएगी जिसमें आपको पता है कि ये अंदरूनी दबाव का शिकार है, बाहर से नहीं बोला, लेकिन अंदरूनी तौर पर दबाव का शिकार। इसको मिसाल से समझना होना, तो हमारे यहाँ जो बहनें हैं, बाप के मरने के बाद जो बेटियां हैं, तो भाइयों से कहती हैं, भाई लोग पूछते हैं कि तुमको हिस्सा चाहिए, कहते नहीं भैया रख लो, हमको नहीं चाहिए। तो जबान से भाई नहीं कहता कि नहीं देगी तो मार डालूंगा, तेरा जीना हराम कर दूंगा, लेकिन वो अंदर से जानती है बहन कि अगर हमने इसको नहीं दिया तो ये हमारा जीना हराम कर देगा, ये हमारा बाप के घर में आना जाना बंद कर देगा, ये हमारा हमसे कते ताल्लुक कर देगा। इसको कहते हैं अंदरूनी दबाव, इसको रजामंदी नहीं कहेंगे। वो भाई जो खुले नहीं समझता ना कि हमारे आपने हमको दे दिया, नहीं दिया, वो ऊपर से बोला, तुम्हारे दबाव में उसने बोला है। समाज के यानी कई तरह के दबाव में आकर उसने ये कहा कि ले लो, लेकिन हकीकत में उसने नहीं दिया है, इसलिए इसको रजामंदी नहीं कहते। तो अंदरूनी या बाहरी दबाव के बगैर हो, दोनों तरफ से, तब वो तजारत मानी जाएगी, तब वो खरीदो फरोख्त मानी जाएगी, वरना नहीं। आगे बढ़ते हैं। तीसरी शर्त यह है कि जो चीज है जिसको बेचा या खरीदा जा रहा है वो हलाल हो, वो हराम ना हो। अगर भाई एक आदमी जवान है, वो बेच रहा है, दोनों राजी हैं, लेकिन सामान हराम है, तो उसका बेचना खरीदना जायज नहीं। जैसे शराब है, सुअर का गोश्त है, जितनी भी चीजें हराम हैं इस्लाम में, आप उनकी तिजारत नहीं कर सकते, उनकी खरीदो फरोख्त जायज नहीं है। आज जैसे एक छोटी सी चीज है, हमारे यहाँ बहुत आम है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह हराम है,
पूरी दुनिया उसको गलत कहती है। उसकी पॉकेट पे वो खुद बोलता है कि मैं डेंजर हूं, उसमें लिखा रहता है कि सिगरेट पीना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। पॉकेट पे भी लिखा रहता है, गुटखे का जो पॉकेट है, अब तो उसमें बिच्छू वगैरह का फोटो लगाया रहता है ताकि जो पढ़ा लिखा नहीं ना वो भी समझ जाए कि भाई ये डेंजर है। पूछेंगे ये क्या है, लोग बताएंगे इसे कैंसर होता है। तो ये मतलब वो खुद अपने आप में बोलता है कि मैं डेंजर हूं। वो चीज हलाल कैसे हो सकती है? तो ऐसी चीजों की तिजारत हराम है, इसको बेचना भी हराम है और इसका खरीदना भी हराम है। इसी तरह से जो सूदी कारोबार है, सूद इस्लाम में हराम है, इसलिए सूद से जुड़ा हुआ कोई कारोबार हलाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही वाज़ेह हदीस है सही मुस्लिम की कि अल्लाह के नबी ने लानत की, लाना रसूलुल्लाह आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदहु व क़ाल हुम सवाउन, कि अल्लाह ताला ने लानत की है, अल्लाह के नबी ने लानत की है सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, उसके मामलात को लिखने वाले पर और इसी तरह से उसके ताल्लुक से गवाही देने वाले पर, और कहा कि हुम सवाउन, ये सब बराबर है, गुनाह में सब बराबर है। वो ये ना समझे कि सूद ये खा रहा है और वो खिला रहा है, मैं तो सिर्फ कुछ लिख रहा हूं। जैसे कुछ लोग हैं बैंक में जॉब कर रहे हैं, अब कहते हैं कि हम तो कुछ लिख नहीं रहे, हम तो कुछ न खा रहे न खिला रहे, हम तो एक जॉब कर रहे हैं। कोई आदमी बैंक की वेबसाइट बना रहा है, बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा है, उसके लिए ऐप बना रहा है, ये सब लिखने वाली चीजें हैं, बनाने वाली चीजें। अब वो सोचे कि हमारा क्या उसमें रोल है, हम तो एक छोटा सा सामान बना के दे रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने वजाहत कर दी है कि सूद खाने खिलाने और उसके आसपास जो भी नजर आया उसमें इन्वॉल्व हुआ, हम सवाउन, ये सब बराबर है। कैसे बराबर है? गुनाह सबका एक सा है, किसी का कम नहीं है। इसको मिसाल से समझना हो तो ये समझो कि एक आदमी को 5 आदमियों ने पकड़ के मार डाला। किसी ने उसकी मुंडी पकड़ी, किसी ने उसका पांव पकड़ा, किसी ने उसका हाथ पकड़ा, एक ने उसका गला काट दिया। तो अब अगर सजाए मौत होगी तो सिर्फ वो गला काटने वाले को होगी, तो जो पांव पकड़ा था उसकी भी होगी। अब वो बोले कि नहीं जज साहब, मैं तो सिर्फ पांव पकड़ा था, गर्दन ये काट रहा था, वो छूट जाएगा। हम सब बराबर, उसका खून करने में सब बराबर है, जिसने हाथ पकड़ा, जिसने पांव पकड़ा, जिसने छुरी चलाई, सब बराबर। ऐसे सूद का मसला है। सूद के में आप घुसे तो चाहे खाने वाला हो, चाहे खिलाने वाला हो, चाहे लिखने वाला हो, चाहे किसी तरह से कोई ताउन करने वाला हो, गवाही देने वाला हो, हम सवाउन, सब के सब बराबर है। तो तीसरा उसूल ये है मेरे भाइयों कि माल जिसकी तिजारत करनी है वो हराम नहीं होना चाहिए। हराम की जितनी भी शक्लें, एक पूरा समझो इसका एक लंबी फहरिस्त है कि हराम की क्या क्या चीजें। जो चीज भी इस्लाम ने हराम करार दिया है उसकी तिजारत नहीं हो सकती, उसका जो है उसकी खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज यह है कि जो चीज बेची और खरीदी जा रही है तो जो बेच रहा है वो उसका मालिक हो। अगर वो उसका मालिक नहीं है उसे नहीं बेच सकता है। आज ये बेईमानी भी हमारे यहां बहुत आम, खासतौर से जमीन वगैरह प्लाट वगैरह के मसले में, एक कैसे कितनी आसानी से आदमी बेच देता है, दिमाग चकरा जाता है। दूसरी की जायदाद और उल्लू बना के बेवकूफ बना के बेच डालता है। यानी हर जगह ये बेईमानी आम है और हद हो गई इसमें मुसलमान। उससे भी ज्यादा अफसोस की बात है कि किताब और सुन्नत का दम भरने वाले ये इस तरह का काम करें कि किसी और की प्रॉपर्टी ले आके बेच दे। ये हराम और नाजायज है। कौन बेच सकता है? जो मालिक हो, और अगर मालिक ना हो तो मालिक ने उसे ये काम सौंपा तो भी बेच सकता है, इसको कहते हैं वकील। भाई मुझे अगर किसी जमीन के ऑनर ने मुझको ये कहा है, मुझको हायर किया कि भाई मेरी ये प्रॉपर्टी भिजवा दो, तो भी मैं बेच सकता, मुझे वकील बनाया। लेकिन ना मुझे किसी ने वकील बनाया, ना मैं उसका मालिक हूं, मैं क्यों बेच दूंगा? लेकिन ये हरामखोरी आम है, ये तिजारत आम है, बेचने वाला और इसमें खरीदने वाले को भी पूरी तरह से इंक्वायरी करना चाहिए। सिर्फ बेचना हराम नहीं है, आपको पता चल गया ना कि दूसरे का, तो आपको खरीदना भी हराम है, बेचना भी हराम है और उसका खरीदना भी हराम है। इसलिए बेचने वाले को भी जो है आगाह रहना चाहिए और जो खरीदने वाला है उसे भी पूरी तरह से जो है मुतनब्बे आगाह रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी अनजाने में वो किसी दूसरे का नुकसान कर बैठे। गर्चे उसकी गलती नहीं है, उसे नहीं पता है, लेकिन उसे ये तो पता है कि ऐसा धोखा हो रहा है। कम से कम किसी वकील को हायर करे, इंक्वायरी करे, पूरी तरह से छानबीन करे, ताकि तेरे जरिए से, तेरी सुस्ती और काहली की वजह से कि तेरे किसी भाई का नुकसान ना हो जाए, किसी पर जुल्म ना हो जाए। तो जब हमें पता है कि बेईमानी आम है तो आपको भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी और का नुकसान ना हो जाए, और हो सकता है उसके बजाय आप ही का नुकसान हो जाए। अगर वो मजबूत पार्टी निकली तो फिर
आपका की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए ये जो है बगैर मिल्कियत के चीज किसी और की है और बेच रहा कोई और, ना उसका मालिक है ना उसका वकील है, तो ये बहुत बड़ी जो है हराम तजारत है, हमारे यहाँ आम है, ये नहीं होनी चाहिए। ये चौथी चीज है। आगे बढ़ते हैं। एक पांचवी चीज ये है कि भाई वो जो चीज बेची और खरीदी जा रही है वो हमारे कंट्रोल में हो। ऐसा नहीं है कि वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, वो आपके जो है और आपके कब्जे में है ही नहीं, पोजीशन आपके पास नहीं है और एक उम्मीद है सिर्फ आपकी और आप उसको बेच दें। जब तक ये कंफर्म ना हो जाए, भले एक उम्मीद है कि आपकी बातचीत चल रही है, वो चीज आपकी हो सकती है, लेकिन जब तक आपकी नहीं हुई है तब तक आप उसको नहीं बेच सकते। जब कंफर्म हो जाए कि आप ही का है तब बेचें। कितने लोग जो है अपने बाप जिंदा है उसकी जायदाद जो है बेटे जो है बेच देते हैं। बाप राजी नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है, बाप मान लीजिए बूढ़ा हो चुका है, उसको कुछ नहीं मालूम, उसका होश गायब है और बच्चों ने बेच दिया। कैसे बेच दिया भैया? ये उनका, उसके मरने का तुम्हारा हो जाएगा लेकिन अभी तुम्हारा नहीं है। या मान लो बाप ने कह दिया कि ये जमीन किसी को दूंगा, नहीं दिया, जब तक तुमको मिल ना जाए तुम उसको बेच नहीं सकते। तो बेचने में वो चीज है जो कंट्रोल में हो, जो उसके हाथ में हो, पोजीशन उससे मिल चुका हो, उसके कब्जे में हो। जब तक कब्जा नहीं है आप जो है उसको नहीं बेच सकते। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, शायद वक्त हो चुका है, मैं खत्म करता हूं। एक आखिरी चीज, छठी चीज, कि बे शरा में, खरीदो फरोख्त में जो चीज भी बेची और खरीदी जा रही है वो मजहूल ना हो, गैर मारूफ ना हो। ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं कि वो क्या चीज है जो चीज बेची जा रही है, या अगर मतलब जिनसे मालूम है कि ये चीज बेची जा रही है, जैसे जमीन मालूम है जमीन बेची जा रही है, लेकिन वो जमीन कहाँ है, कितनी है, उसका पूरी डिटेल, पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम पता चल गया तो जहालत खत्म हो गई। नाम भी पता हो, उसकी उसका पूरा नक्शा पता हो कि कितनी जमीन है, कैसे है, कहां पे है, हर चीज मालूम है, उसकी कीमत भी, हत्या की कीमत भी। ऐसा नहीं कि एक चीज ऐसे बेच दिए, कीमत क्या पता नहीं, बाद में तय करेंगे, नहीं, वो कंफर्म होना चाहिए कि ये चीज है, इसकी ये कीमत है। तो कोई भी चीज उसमें मजहूल ना रह जाए कि मजहूल है इसका पता, हर चीज वाजे हो, दो दो चार की तरह से वाजे हो। जब तक वाजे में हुई आप उसको खरीद नहीं सकते। मैं आपसे रुखसत होऊंगा, एक मिसाल देखिए, हमारे यहाँ बहुत आम है इस उसूल को ना जानने की वजह से। बहुत सारे लोग, लड़का पैदा होता है, लड़की पैदा होती है, अकीका करना होता है, तो किसी बकरा बेचने वाले की दुकान पे जाते हैं, कसाई की दुकान पे, कस्साब की दुकान पे, और क्या कहते हैं कि ये बकरा हमने खरीद लिया, अकीका करना है, कीमत कितना है, ऐसा करें, फला के तरफ से अकीका करना है, किसी को मौलवी को बुला के लाया, जबा करवा दिया, अकीका हो गया, अब गोश्त तोलो, किलो के हिसाब से मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो अकीका हो चुका, जबा हो चुका, और बाद में पता चलना कितने किलो का है, तो इससे अकीका नहीं हुआ। जब जबा किया था तो ये उस बकरे का मालिक नहीं था, ये हराम है, नाजायज है। अभी आपने बकरा खरीदा ही नहीं, उसको जबा करवा दिया, उसके अकीका करवा दिया आपने, तो क्यों, वजह क्या है इसमें? वजह यह है कि उसकी कीमत मजहूल है। तो बकरा तो पता है कि सामान है, लेकिन ये कितनी कीमत का मुझे पता नहीं। आपने ये जरूर कह दिया है कि 1 किलो का इतना रेट है, लेकिन इसमें कितना किलो निकलेगा पता नहीं। भाई आप पूरा खरीद लीजिए, उसके बाद पूरा खड़ा होकर तोल लीजिए तो कोई मतलब नहीं, कीमत है, लेकिन नहीं, इसका पाव वगैरह नहीं गिनेंगे, सिर्फ गोश्त कितना है, वो कितने किलो का निकलेगा उतना हम कीमत आपको पे कर देंगे। तो ये आप उसके मालिक ही नहीं हुए, आपने उसको खरीदा ही नहीं, ये तजारत हुई नहीं। इसलिए मजहूल, यानी कोई भी चीज मजहूल नहीं देनी चाहिए खरीदो फरोख्त में। हर चीज ओपन हो, क्या चीज है उसका नाम वाजे हो, कितने मिकदार में ये वाजे हो, उसकी कीमत क्या है ये भी वाजे हो, कीमत अभी देनी है या बाद में देनी है ये भी वाजे हो, हर चीज क्लियर हो, तब जाके तजारत होगी। इसमें कोई भी चीज अगर आपने छुपाई या उसको गोल मोल किया तो तजारत नहीं मानी जाएगी। तो ये कुछ बुनियादी उसूल हैं जो हर जगह अप्लाई होते हैं। मैंने वो उसूल आपके सामने, वो शर्तें आपके सामने रखी हैं जो हर तजारती मामलात में अप्लाई होंगे। बाकी कुछ तजारती चीजें ऐसी हैं कि वहां के लिए खास, उस चीज के लिए अलग अलग और ज़ाब्ते और उसूल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम ये जो 6 चीजें मैंने आपको बताया, ये 6 चीजें किसी भी तरह की तजारत हो, कोई भी चीज खरीदा बेचना हो, उन तमाम जगहों पे कम से कम 6 चीजें तो आपको नोट करना है। बाकी कोई चीज ऐसी भी हो सकती है जहां कुछ और चीज आपको देखनी हो, लेकिन ये तो कंपलसरी है कि 6 चीजें देखना। तो ये चंद चीजें मैं आपके सामने रख सका हूं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम हर तरह के मामलात को किताब और सुन्नत की रोशनी में अंजाम दें। आमीन या रब्बल आमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमीन अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, एक ऐलान है हज़रात की खिदमत में। इसी मस्जिद के हवाले से, जिस मस्जिद में आप नमाज पढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इस मस्जिद की तामीर का काम जो है चालू है। ख़वातीन के लिए भी इंतज़ाम करना है, बहुत सारे काम हैं। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़ कर ताउन करें। रुए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन जगह जो होती है वो अल्लाह ताला का घर है, और रुए ज़मीन की सबसे बदतरीन जगह बाज़ार है। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि सबसे बदतरीन जगहों पर हमारे पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, और जो सबसे बेहतरीन जगह है वहाँ पे हमारे पैसे कम खर्च होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो अल्लाह ताला का घर है, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। और इसमें लगे हुए पैसे का एक बेनिफिट ये है कि हमारी सांसें बंद हो गई तो भी ये सवाब मिलता रहेगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। हो सकता है कि हमने ज़िंदगी भर जो अपने पूरी ज़िंदगी में जो सदका किया है उसका जो सवाब है हमने किसी मस्जिद में लगाया है, मरने के बाद उससे ज़्यादा डबल सवाब सिर्फ वहीं से आ जाए। आप सोचिए, आपने मस्जिद में कुछ पैसा लगा दिया और हज़ारों साल तक ये मस्जिद मौजूद रही। क़यामत कब आएगी कुछ पता है? कब्र में हो सकता है हम हज़ारों साल रहें मरने के बाद, तो हज़ारों साल में ये सवाब कितना हो जाएगा आप सोचें। यानी हमारी जो 60 साल जिंदगी है, ये जिंदगी 10 गुना बढ़ा दी जाए तो भी उतना सवाब नहीं पाएंगे जितना सवाब जारिया हमको सवाब दे देगा। इसलिए ऐसी जगहों पे ज्यादा खर्च करना चाहिए जहां सवाब अनलिमिटेड हो, जहां सवाब की कोई हद नहीं है, जहां ये खाता कभी क्लोज ही होने वाला नहीं है, आपके अकाउंट में हमेशा क्रेडिट होता रहेगा, आपके मरने के बाद भी मिलता रहेगा। इससे बेहतर कोई जगह नहीं। बाकी दूसरी जगहों पर खर्चा किया, मतलब वो भी अच्छी जगह है, लेकिन वो एक लिमिट है, वहां पे सवाब की एक लिमिट है, उसके बाद वो सवाब बंद हो जाएगा। लेकिन यहां आपने खर्चा किया किसी मस्जिद में और इसकी इल्मी मामलात में, दीनी मामलात में, तो ये आपका इसका फायदा हमेशा जारी रहता है और फिर आपका सवाब भी हमेशा जारी रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि जितना हो सके खूब पैसे कमाएं मेहनत से, जितना हो सके आप किताब और सुन्नत की रोशनी में तिजारत करें और अल्लाह ताला की राह में जितना हो सके खर्च करें। मैं बात ज्यादा नहीं लंबी करूंगा, बस एक बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो मदीना में क्या मसला था? मसला था उनके घर बार का, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कमाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की गई? सबसे पहले मस्जिद बनाई गई। सबसे पहले वो मसला हल किया गया कि सबसे पहले हमारी इबादत की जगह हो, उसके बाद दीगर मसाइल हल होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मस्जिद की जिम्मेदारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। हमारे सारे काम होते रहेंगे, लेकिन सारे कामों में सबसे पहले कौन सा काम होना चाहिए? सबसे पहले मस्जिद का मसला हल होना चाहिए, उसके बाद हमारे दूसरे मसाइल का नंबर है। लेकिन आज हम हर मसले हल कर लेते हैं, लेकिन मस्जिद का मसला सबसे देर में होता है, अगर होता भी है तो सबसे देर में होता है। और बहुत लोगों के जहन में तो रहता भी नहीं है कि मस्जिद की कोई जरूरत है, उसकी भी देखभाल की जरूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, जितना हो सके आप लोग ताउन करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दावाना